Okay, so class O3. Census the topic में what we have seen that sensors are used to input the data, input the different types of data to the computer, and helps the systems to work, the automatic and the control systems. For the automatic systems, for the control systems, we have seen that there must be an input and output as well from the computer. And in the monitoring systems, we have seen that there's an input from the sensors and as such no output from the system except the alert, except the sound, except the buzzer, except the light. That means only the monitoring, only the alert system, only the monitoring is done. So in the monitoring system, there is an example, monitoring of patient in a hospital. Here, it is saying a number of sensors are attached to the patients. These measures vital signs such as temperatures, heart rate, breathing rate, etc. The sensors are all attached to the computer system. Sensors constantly send data back to the computer system. The computer samples the data at the frequent intervals. The range of acceptable values of each parameter is keyed into the computer. Like use एक patient है, उसके साथ बहुत सारे sensors attached हैं जो कि उसकी मल्टीपल वैल्यूज जो है वो इनपुट किए जा रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल उसका हार्ट रेट हो गया, उसका ब्रीदिंग रेट हो गया, उसका ब्लड प्रेशर लेवल हो गया, उसका ग्लूकोज लेवल हो गया, उसका ऑक्सीजन लेवल हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया. These are the values that are inputting into the computer through a sensors, and obviously all these values are normally in analog form. But if they are in a digital form, then nothing would happen. But if they are in an analog form, then what will happen? All these values will move towards ADC and will convert from analog to digital using ADC. Now what is saying that sensors are all attached to the computer system. The sensors constantly send data back to the computer. Are giving constantly data to the computer at a given interval of time. Obviously, at a frequent interval of time, यहाँ पे बात कर रहे हैं, same बात. That means data logging. Data logging के अंदर continuously at a given interval of time पे data आ रहा होता है. उस वक्त तक जब तक जो है वो system को close नहीं किया जाता या obviously system को close नहीं किया जाता. The range of acceptable values for each parameter. Obviously, for a human being there are different values. For normally kids की values different होती हैं, adults की values different होती हैं, aged persons की values different होती हैं, चाहे वो breathing की हो, heart rate की हो. तो कहते हैं कि अगर ये automatic system है तो कुछ values जो है for each parameter, like for example breathing rate की जो भी parameter होंगे, जो भी बात होंगी, जो values होगी वो डाल दी कि this is acceptable. इसी तरह हार्ट रेट की डाल दी होगी, दिस इज एक्सेप्टेबल. टेम्परेचर की डाल दी, एक्सेप्टेबल. ये रख दी. नाउ व्हाट हैपेंड, द कंप्यूटर कंपेयर्स द वैल्यूज फ्रॉम द सेंसर्स विद दोस वैल्यूज कीड इन सेम सिनेरियो, सेम स्टोरी के इनपुट हुआ, देन एडीसी के पास गया, देन कंप्यूटर के पास जाता है, देन कंप्यूटर कंपेयर करता है. कंपेयर करने के बाद क्या देखता है कि दो वैल्यूज फ्रॉम द सेंसर विद द वैल्यूज कीड इन, यानी जो वैल्यूज पहले से मौजूद थी उनको उनसे कंपेयर किया जो वैल्यूज अभी सेंसर से आ रही हैं. सो इफ एनीथिंग आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, a signal is sent by the computer to sound an alarm. Let's say if the breathing rate is very low, then obviously it will sound an alarm that कुछ कर लो भाई, breathing इसकी मतलब कुछ भी जो भी breathing के लिए precautionary measures या वहाँ पे जो करना होगा वो कर लो. अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है तो कुछ दवा शवा दे दो भाई कि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए. लाइक सिर्फ अलर्ट कर सकता है, आगे करना कराना सारा का सारा ह्यूमन बीइंग्स ने. If the data from the sensor is within range,
अगर विद इन रेंज है, पेशेंट को जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक कोई भी वैल्यूज ऐसी नहीं है, सब नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, तो फिर नथिंग वुड हैपन, only the values would be seen. You can see the values. They're saying the values are shown in either graphical form or in on a screen or in a digital form. तो इन दोनों फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म के अंदर वैल्यूज है वो आपको दिखेंगी. तो दैट्स द वे द सिस्टम वर्क्स. इस तरह जो है वो काम होता है, और इस तरह जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम स्पेसिफिकली ये हम पेशेंट वाले मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो काम करते हैं. नाउ फाइनली इट इज सेइंग दैट मॉनिटरिंग विल कंटिन्यू, कंटिन्यूस, मतलब ऐसा नहीं है कि सेंसर्स वगैरह बॉडी पे लगा दिए जाए और वो बोलेगे यार 2 घंटे हो गए बस अब मशीन जो है वो बंद करो बहुत हो गया. नहीं, ये चलता रहता है. आईसीयू के अंदर नॉर्मली हमने देखा है पेशेंट से हर वक्त कनेक्टेड होते हैं, तो अंटिल द सेंसर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट, जब तक मशीन ना बंद कर दी जाए या सेंसर्स को डिस्कनेक्ट ना कर दिया जाए. So these are the things, these are the ways through which you can connect the sensors. You can connect the patient basically with these sensors and monitor the patient in the hospital. ये हमारा काम बहुत आसान कर रहे हैं. पहले का वक्त होता था, एक आईसीयू होता था, एक आईसीयू के अंदर फॉर एग्जांपल 20 बेड्स हैं, ऑन एवरेज मुझे जहाँ तक याद है मैंने खुद देखा था, आईसीयू के अंदर फॉर ईच सिंगल पेशेंट, फॉर ईच सिंगल बेड देयर इज नॉर्मली अ पर्सन, नॉर्मली या on average for 2 beds there is a person who is hired for monitoring those patients. कि सिर्फ और सिर्फ देखता रहे उन पेशेंट्स को, दैट्स इट. उसका कोई काम नहीं था, वो सिर्फ मॉनिटर करता था, देखता रहता था उस वक्त तक जब तक जो है वो जब तक जो है वो वो ना हो जाए, क्या कहते हैं, जब तक कोई कोई जो काम जैसे सेंसर कर रहा है ना कि कोई आड़ी टेढ़ी वैल्यूज आ रही हैं तो फौरन जो है वो चीख के बता रहा है. बस वो आदमी देखता था और वो हर थोड़ी देर बाद जो है वो पेशेंट की वैल्यूज ले रहा है, थोड़ी देर बाद बुखार चेक कर रहा है, थोड़ी देर बाद जो है वो हार्ट रेट चेक कर रहा है या बीट जो भी होता है, ठीक है ना, हार्ट रेट जो नब्स को चेक करके कह देते हैं. यानी मैनुअल सारा काम होता था. ठीक है, ये सेंसर्स और ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती थी, और कुछ थोड़े बहुत जो सेंसर्स की मदद से जो मशीन्स थी बस वो मशीन्स रिजल्ट देती थी, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था. यानी मशीन्स जो है बस रिजल्ट देती थी, खुद पढ़ना पड़ता था कि हाँ यार ये आउटसाइड द रेंज है और ये एक्सेप्टेबल रेंज है और ये एक्सेप्टेबल रेंज नहीं है. तो इन कंप्यूटराइज सिस्टम के आने की मदद से अगर 20 क्या 100 बेड्स भी आईसीयू में हो तो एक बंदे के अलावा किसी को हायर नहीं करना. वो एक बंदा क्या होगा, इन 100 सिस्टम्स को जस्ट जो है वो देख रहा होगा, और वो क्या देख रहा होगा, सिर्फ ये देख रहा होगा कि किसने अलार्म बजाया है, बस दैट्स इट. जिसने अलार्म बजाया उसका काम ये होगा कि पेशेंट्स, उसका काम ये होगा कि डॉक्टर को बेड नंबर 20 पे जाके भेज देना, इससे अलार्म बज जाए, दैट्स इट. गेटिंग माय पॉइंट ना? तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोमेटिक सिस्टम एंड द मैनुअल सिस्टम. मैनुअल सिस्टम के अंदर बंदा चाहिए स्पेसिफिकली, यानी मतलब क्या ऐसा क्या हो कि भाई जो है वो ऑब्वियसली एक बंदा आके चेक करे, एक मतलब ऑब्वियसली टेक्स टाइम, एक एक पेशेंट की सारी वैल्यूज को देखना, चेक करना, और उनमें से अगर कोई मसला होता है तो फिर डॉक्टर को बुला के लाना. तो मतलब ये सिर्फ एक आदमी का तो काम नहीं है ना, 20 पेशेंट्स के लिए, ठीक है ना. तो एटलीस्ट 8-10 तो आदमी चाहिए होंगे 20 पेशेंट्स के अंदर कि जो है वो हर वक्त देख रहे हो उन पेशेंट्स को, और अगर किसी को कोई इशू हो तो जाके बड़े डॉक्टर को बुला के लेकर आए. बट अब अगर ये सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाए तो कोई एक आदमी भी नहीं चाहिए, नहीं 10 आदमी जो उधर जॉब कर रहे थे उनकी जॉब खत्म, ठीक है. बदले में एक पूरा कंप्लीट कंप्यूटराइज सिस्टम और एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर ले कि जब सिस्टम अलर्ट करे कि बेड नंबर 97 या बेड नंबर 23 का जो साउंड करे अलार्म, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डॉक्टर को बुला के बेड 23 तक जो है वो पहुंचा देगा. बल्कि इतना जब इतना कंप्यूटराइज है तो इतना भी कंप्यूटराइज हो सकता है कि डॉक्टर तक ऑटोमेटिकली मैसेज जो है ये पहुंचे, ठीक है. ये जो कंप्यूटराइज है, माइक्रो प्रोसेसर अटैच्ड है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू मेलिंग की जा सकती है, मोबाइल की कनेक्टिविटी के थ्रू मैसेजिंग किए जा सकते हैं, बहुत कुछ. देयर इज मतलब कंप्यूटर है तो पता नहीं हजारों पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं. ये सिस्टम जो है वो इस तरह
हेल्प आउट करते हैं और किस तरह ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो बहुत सारा काम जो है वो करता है. Now let's see the control system, and the difference between the control system and the monitoring system is that in monitoring system the data was coming, like for example, from the input devices like sensors, and then to the ADC, and then to the microprocessor, and then at the microprocessor it is comparing, and then after comparing nothing would happen except that except the alert. Okay? But in this system the data is coming from the sensors, and then ADC, and then microprocessor, and then from the microprocessor again data is, again the instructions are going back to the system, to the to the lights, to the different types of output devices that are performing the task specifically, through which the data is coming from the sensors to the sensors basically. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक साइकिल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर भी इंस्ट्रक्शन अगेन बैक गिव बैक कर रहा है टू द होल सिस्टम, और इस तरह ये पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है without the intervention of a human being. So this is called a control system. So in control system of street lights, it is saying the next sequence shows how a microprocessor is used to control the operation of the street lamp. The lamp is fitted with the light sensors which constantly sends data to the microprocessor. The data values from the sensors changes according to whether it is sunny, cloudy, raining or it is a night time. लैम्प के साथ सेंसर्स अटैच्ड हैं और जो कंटिन्यूसली डेटा दे रहे हैं, और जो भी वेदर में चेंजिंग आ रही है वो सब जो है वो अपने पास डेटा जो है वो स्टोर कर रहे हैं सेंसर्स. देन क्या कर रहा है, द लाइट सेंसर सेंड डेटा टू द एडीसी इंटरफेस. स्टोरी सेम, लाइट से सेंसर से डेटा आ रहा है, एडीसी की तरफ जा रहा है, दिस डिजिटाइजेस द डेटा, दैट मींस डेटा डिजिटल कन्वर्ट हो गया एंड सेंड टू द माइक्रोप्रोसेसर. देन माइक्रोप्रोसेसर क्या कर रहा है, सैंपल्स द डेटा एवरी मिनट और एनी अदर फ्रीक्वेंसी, यानी सैंपल कर रहा है डेटा को किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, यानी वो जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है उसके ऊपर. Then if the data from the sensors is less than the value stored in the memory, again same story, compare हो रहा है डेटा प्री स्टोर्ड वैल्यूज से. तो कहते हैं सेंसर का से आने वाला डेटा अगर छोटा है, यानी ऑब्वियसली लाइट अगर कम है, stored in the memory, the signal is sent from the microprocessor to the street lamp and the lamp is switched on. लाइट अगर कम है, उजाला अगर कम है तो लाइट ऑन हो जाएगी. उजाला अगर ज्यादा है, कहते हैं लैम्प स्विच्ड ऑन फॉर 30 मिनट्स बिफोर द सेंसर इज रीडिंग द सैंपल्स. अगेन 30 मिनट्स का फॉर एग्जांपल इंटरवल ऑफ टाइम है, 30 मिनट्स तक जो है वो लाइट जलती रहेगी. इससे एक और फायदा होता है, कि जो है वो फ्लिकरिंग, लैम्प फ्लिकरिंग ऑफ ऑन ड्यूरिंग हैवी क्लाउड कवर जो है वो नहीं होता. इफ द डेटा फ्रॉम द सेंसर ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है, a signal is sent from the microprocessor to the street lamp and the lamp is switched off. तो सेम सिनेरियो कि भाई 30 मिनट्स तक लाइट चलेगी, फिर देन अगेन डेटा आएगा. फॉर एग्जांपल क्या पता ऐसा हो गया हो कि अभी बारिश का सीजन हो तो अचानक से अंधेरा हो गया हो, आधे मिनट तक लाइट चली, फिर अगेन डेटा आया, क्या पता उस वक्त अंधेरा है, फिर जो है वो वैल्यूज कम आ रही है, फिर थोड़ी सी लाइट जल गई, फिर आधे घंटे बाद जो है वो बादल छट गए, खत्म, घटा वटा खत्म हो गई, एंड देन अचानक से डेटा जो है वो सेंसर से आया और वो ग्रेटर देन द वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी था. तो अब लाइट जलाने का कोई मकसद नहीं था, तो सिग्नल सेंड हुआ माइक्रोप्रोसेसर से स्ट्रीट लैम्प को एंड द लैम्प इज स्विच्ड ऑफ. तो लैम्प जो है वो ऑफ हो गया. इसी तरह रात दिन ये होता रहता है और ऑटोमेटिक लाइट्स जो है वो ऑन होती रहती है, ऑफ होती रहती है, और ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो खत्म हो जाती है. यानी ये फायदा है सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम का कि अब यहाँ पे ह्यूमन बीच में कुछ नहीं करने के लिए आ रहा, खुद हो रहा है जो कुछ हो रहा है. The lamp stays switched off for 30 minutes for sensor reading the data are sampled again. अगेन ये बात कह रहा है कि इससे फ्लिकरिंग वगैरह जो है बचा रहे हैं, हैवी क्लाउड कवर है तो फ्लिकर ऑन ऑफ हो रहा होता है, तो इस तरह बचाने के लिए हाफ एन आवर का एक अच्छा टाइम देती है कि लगातार ये बंद रहे या लगातार ऑन रहे. सी यहाँ पे इन्होंने एक बात नहीं बताई जो आपने करनी होगी, वो ये है कि जब माइक्रो प्रोसेसर डेटा सिस्टम तक वापस जा रहे हैं, लाइट्स तक वापस जा रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर जिस तरह डेटा देता है वो डिजिटल फॉर्म में देता है, और स्ट्रीट लाइट्स डेटा जो रिसीव करता है वो एनालॉग फॉर्म में करता है. तो यहाँ पर एक एडीसी जो है वो डीएसी जो है वो लगेगा जो डिजिटल टू एनालॉग डेटा कन्वर्ट करेगा. ठीक है. नाउ द लास्ट सिस्टम, डायलॉग ब्रेकिंग सिस्टम ऑन कार्ड्स.
you must have seen the ABS sticker normally on cars कि एंटी-लॉक ब्रेकिंग काम कर रहा होता है नॉर्मली गाड़ियों के अंदर। एंटी-लॉक में होता क्या है, किस तरह डिफरेंट सेंसर्स जो हैं वो मिलके जो है वो कुछ काम करते हैं। In this system, ABS on cars use magnetic field sensors to stop the wheels locking up on the car if the brakes have been applied too sharply. जब कभी ब्रेक्स लगाए जाए तो ऐसा होता है कि किसी भी टायर के ऊपर ब्रेक पैड्स रिटर्न नहीं आते, यानी वो दबे रह जाते हैं। तो वो जो रिटर्न नहीं आते ना, उसे रिटर्न लाने के लिए जो है वो ABS काम करता है ताकि एक्सीडेंट्स का चांसेस जो है वो ना हो और तमाम टायर्स गाड़ी के जो हैं वो सेम स्पीड पे रोटेट करें या रिवॉल्व करें और किसी किस्म की कोई चेंजिंग या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और इससे ब्रेक पैड्स भी बचते हैं, वो वेयर अप नहीं होते। इससे टायर्स भी बचते हैं, वो वेयर अप नहीं होते, बाल्ट नहीं होते। यानी एक अच्छा सिस्टम है जो कि हर तरह से जो है वो फ़ायदा दे रहा है। इससे गाड़ी गर्म नहीं होती, इससे टायर गर्म नहीं होते, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इससे बहुत सारे फायदे हैं जो इस ABS से होते हैं। कहते हैं वन व्हील ऑफ द कार रोटेट्स टू स्लोली। अब कैसी अजीब सी बात है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि गाड़ी एक साथ चल रही है और 3 टायर अलग स्पीड में चले और एक अलग स्पीड में चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये देखना कि आगे कह रहा है कि कितनी देर के अंदर when one wheel of the car rotates too slowly, that is locking up, कि एक जब ब्रेक मारा गया, ब्रेक मारने के बाद कोई एक टायर है जिसमें लॉकअप हो रहा है, ठीक है, ब्रेक पैड्स जो है वो थोड़े से लॉक हुए, ये समझ। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंसर सेंड्स डेटा टू द माइक्रोप्रोसेसर। मैग्नेटिक फील्ड से डेटा आता है, माइक्रोप्रोसेसर को डेटा सेंड करता है। If the data is in analog form, then ADC आएगा, अगर नहीं तो कुछ नहीं। The microprocessor checks the rotation speed of the other 3 wheels. If they are different or rotating faster, the microprocessor sends a signal to the braking system. Microprocessor जो है वो rotation speed देखेगा बाकी की, and if they are different, अगर अलग होंगे बाकी 3 से, if they are different, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, सिग्नल करेगा फॉरन ब्रेकिंग सिस्टम को और ब्रेकिंग प्रेशर जो है वो अफेक्टेड व्हील से रिड्यूस हो जाएगा, ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो उस व्हील से कम हो जाएगा। अच्छा, ये कितनी देर में होगा? द व्हील्स रोटेशन स्पीड इज देन इंक्रीज टू मैच द अदर व्हील्स, और व्हील की रोटेशन बढ़ा दी जाएगी ताकि बाकी तीनों व्हील्स की तरह चारों व्हील्स जो है वो एक साथ तेजी से काम कर लें। चेकिंग द रोटेशनल स्पीड यूजिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड सेंसर इज डन सेवरल टाइम्स अ सेकंड। इतनी देर में, एक सेकंड के अंदर पता नहीं कितनी मरतबा चेक कर लेते हैं। तो ये जो बात थी ना कि रोटेट्स टू स्लोली, दैट इज लॉकिंग अप, तो बज़ाहिर दिखता ही नहीं है, बज़ाहिर पता ही नहीं लगता, क्योंकि विद इन अ सेकंड ये पता नहीं कितनी मरतबा चेक कर चुका होता है और ये काम जो है वो हो चुका होता है। एंड ब्रेकिंग प्रेशर टू ऑल व्हील्स कैन बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टू प्रिवेंट एनी व्हील्स locking up under heavy braking. This is felt as a judder on the brake pedal as a braking system is constantly switched off and on to equalize the rotational speed of all 4 wheels. ये कहते हैं कि ये continuously हो रहा होता है within a second, ताकि जो है वो किसी किस्म की जो है वो पता ना लगे और constantly जो है वो same speed पे काम कर रहा हो। One of the wheel rotating too quickly, अगर कोई भी एक व्हील जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है, braking pressure is increased to that wheel until it matches the other 3. अगर एक व्हील तेजी से चल रहा है, उसमें ब्रेकिंग प्रेशर सही नहीं लगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर भी इसको दे दिया जाता है ताकि चारों अगेन जो है वो सेम स्पीड पे काम करें। सो अल्टीमेटली इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच इट इज सेइंग दैट जो है वो चारों व्हील्स जो है वो एक ही तरह, एक ही उस पे जो है वो काम करे, एक ही स्पीड पे काम करे, ठीक है। सो दैट्स द एंड फॉर द systems, control systems and automatic system. That's your homework. Figure 5 for activity 5.7. Find out more details about the ABS system works and how it modified in modern systems such as traction control. Investigated the use of magnetic field sensors. Activity 5.7 is your homework. ठीक है, ये मैं आज जो है वो
आपको जो है वो अपलोड कर दूंगा आपके पोर्टल पर। अच्छा, लेट्स एंड फॉर टुडेज क्लास। We'll continue with the other input devices in the next class.